Good morning, class. So, they were going to start our continuing with the cyclohexane conformations. In the previous class, we have discussed about the conformational analysis of cyclohexane. Which kind of conformational are exist? Uh, First one, chair conformation, board conformation, twist board conformation, and half chair conformation. और हम लोग ने उसकी स्टेबिलिटीज़ कंपेयर की थी. सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा था? चेयर कन्फॉर्मेशन इज़ मोस्ट स्टेबल, देन बोर्ड कन्फॉर्मेशन, सॉरी, chair conformation is most stable, then twist board, then board conformation, and half chair conformation is much unstable. Okay, so now we will discuss mono substituted, di substituted, and tri substituted cyclohexane conformational analysis. In which state the cyclohexane, when I get substituted with the other group or atom, then in which situation or in that conformation this molecule how can get stability, or which form is more stable, we will discuss. So to discuss that, ये दिस इज द कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन. एंड ये कन्फॉर्मेशन चेयर कन्फॉर्मेशन प्रिफर करते हैं हम लोग सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल है चेयर कन्फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं. इसलिए जो हम केस डिस्कस करने वाले हैं, मोनो सब्सटीट्यूटेड, डाई सब्सटीट्यूटेड, ट्राई सब्सटीट्यूटेड, तो इसके लिए हम मतलब ये चेयर फॉर्म का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो इन द चेयर form of cyclohexane, this is the chair form of cyclohexane. Okay, so in this chair form, each carbon in a chair conformation of cyclohexane, there are two kinds of position occupied by hydrogen atom. In a 6 hydrogen are held by bond which are perpendicular to the average plane of ring. These are called as a axial bond. Okay, this is axial bond. These are also axial bond. This is axial and this is axial. These are the axial bond which are perpendicular to the average plane of a ring, that is called axial bond. And the other 6 bond holding the hydrogen in average plane of a ring called as equatorial bonds. Which bond is equatorial? Which are holding average plane. Okay, this is equatorial positions. Okay, in the chair conformation, each carbon has a one axial and one equatorial bonds. Okay, every carbon possesses one equatorial and one axial bond. And when I got flipping or conformation, in the conformation we discuss the rotation of a carbon single bond. But at the cyclohexane molecule, here the conformation is by flipping, not by रोटेशन. ओके, वहाँ पे हम रोटेशन देखते थे कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में, बट इन द साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल देयर इज अ फ्लिपिंग इज द काइंड ऑफ रोटेशन. जैसे हम इथिलीन मॉलिक्यूल में, ये न्यूमन्स प्रोडक्शन ऑफ इथिलीन था, तो इसका कन्फॉर्मेशन देखने के लिए ये बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ऑफ अ कार्बन, इसको हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रोटेट करते थे. बट in the cyclic molecule we have flipping. Okay, कहाँ से कहाँ फ्लिप करेंगे? यहाँ से यहाँ. ठीक है, this carbon will shift here, 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 and this one is shift here. Like this flipping will occur, and after flipping we will got a different conformational analysis, different conformational molecule or isomer, that is, and they are different in their axial and equatorial position with respect to each other. Okay, so यहाँ पे जो molecule at the axial है, after flipping वो molecule इस दूसरे conformational का equatorial बन जाएगा. ठीक है, after flipping. If I take an example of this is my chair conformation cyclohexane.
यहाँ पे मेरा ए है और यहाँ पे मेरा बी है. If I flip that molecule, then I got another conformation like this, and after flipping this axial bond become, यहाँ पे आने के बाद वो क्या होगा, इक्विटोरियल होगा, सॉरी इक्विटोरियल पे जाएगा. ए जो इस मॉलिक्यूल में एक्सियल पे है, एक्सियल पोजीशन पे है, वो आफ्टर फ्लिप करने के बाद कहाँ पे आएगा, इक्विटोरियल पोजीशन पे आएगा. और जो बी इक्विटोरियल पोजीशन पे है, आफ्टर फ्लिपिंग इट विल कम एट द पोजीशन ऑफ अ एक्सियल. दिस इज द एक्सियल पोजीशन. So this kind of a flipping, and by the with the help of flipping we can get the different kind of conformation in the conformational analysis of cyclohexane molecule. So यहाँ पे रोटेशन नहीं देखेंगे, यहाँ पे फ्लिपिंग देखेंगे. ठीक है, रोटेशन एंड फ्लिपिंग काइंड ऑफ सेम वर्ड फॉर conformation to get a conformational isomers. So at the temperature of a cyclohexane, at the room temperature, cyclohexane rapidly interconvert, flip to mirror image chair conformation. On flipping, all the equatorial hydrogen becomes axial and all the axial hydrogen becomes equatorial. This interconversion is so rapid at room temperature that all the hydrogen on the cyclohexane, all the hydrogen on the cyclohexane कैन बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट. ओके, इनकी फ्लिपिंग जो है रूम टेम्परेचर पे इतनी फास्ट होगी, ठीक है, एक दूसरे के फॉर्म में इतने जल्दी कन्वर्ट होते रहेंगे, इतने फास्टली कन्वर्ट होते रहेंगे कि एक्सियल एंड इक्विटोरियल जो है, जो डिफरेंट पोजीशन है साइक्लोहेक्सेन के ऊपर, तो ये इंटर कन्वर्शन, फास्टली इंटर कन्वर्शन की वजह से वो जो उसका नेचर है एक्सियल इक्विटोरियल, वो सेम नेचर बन जाएगा. ठीक है, सो इसका अगर स्पेक्ट्रा देखेंगे हम लोग, H1NMR स्पेक्ट्रा, तो ये सेम सिग्नल देगा बिकॉज ऑफ इंटर कन्वर्शन बहुत फास्टली हो रही. और इसी चीज़ को हम लोग अगर लो टेम्परेचर पे देखेंगे -°C पे, तो we can differentiate axial and equatorial position with the help of H1NMR spectra, because they gives axial proton gives different spectra and equatorial gives different spectra at the lower temperature, at the -80°. For example -80°C इस पे हम इन दोनों का अगर क्या H1NMR देखेंगे तो डिफरेंट आएगा, बट एट द रूम टेम्परेचर इट विल गिव्स द सेम इक्विवेलेंट प्रोटॉन और सेम इक्विवेलेंट ग्रुप. ओके, as noted earlier, the energy barrier between first and second is only 10.8 kilocalorie per mole. 10.8 kilocalorie per mole. Ring flipping is slowed at -80°C. Their axial and equatorial hydrogens can be differentiated as two different set of proton, each set giving separate H1NMR signals. So इसकी एनर्जी इतनी कम होने की वजह से वो एट दी थोड़ा अगर टेम्परेचर मिल गया उसको, एट द रूम टेम्परेचर की अगर बात करें, रूम टेम्परेचर क्या होता है नॉर्मली 25°C. सो एट द रूम टेम्परेचर इट विल इंटर कन्वर्ट फास्टली बिकॉज इसकी एनर्जी सिर्फ 10.8 किलो कैलोरी है, जो कि बहुत कम है. मतलब ये फॉर्म में इस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए जस्ट वी हैव टू गिव 10.8 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, जो कि रूम टेम्परेचर में इजीली इसको मिल जाती है. एंड इसकी वजह से वो जो फ्लिपिंग है, इंटर कन्वर्जन है इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड कन्फॉर्मेशन, वो फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसके जो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन के जो डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट है और प्रोटॉन्स है, वो सेम सिग्नल्स शो करना शुरू कर देते. बट एट द लो टेम्परेचर -80°C पे वो जो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. मतलब ये जो एक्सियल पोजीशन वाला प्रोटॉन होगा वो डिफरेंट सिग्नल देगा, एंड इक्वेटोरियल वाला जो प्रोटॉन होगा वो डिफरेंट सिग्नल देगा. So now next topic is conformational analysis of mono substituted cyclohexane.
ठीक है। मोनो सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, मोनो सब्सटीट्यूटेड मीन्स अगर हम साइक्लोहेक्सेन में एक हाइड्रोजन को किसी और एटम और ग्रुप के साथ सब्सटीट्यूट मतलब बदलते हैं तो वो हो गया मोनो सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। अभी हमें देखना है कि मोनो सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन कौन सी कन्फॉर्मेशन में ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसका तो मेन कन्फॉर्मेशन हम चेयर कन्फॉर्मेशन ही डिस्कस करते हैं, बट इन दी चेयर कन्फॉर्मेशन वो जो ग्रुप हमने सब्सटीट्यूट किया है वो एक्सियल पोजीशन पे ज़्यादा स्टेबल होगा या इक्वेटोरियल पोजीशन पे ज़्यादा स्टेबल होगा, वो हम कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में डिस्कस करते हैं। So when one hydrogen in cyclohexane is replaced by larger atom or a group, crowding occur. The most several crowding is among atom held by 3 axial bond on the same side of molecule. The resulting repulsive interaction is called as 1,3 diaxial interaction. जब हम वो जो सब्सटीट्यूटेड ग्रुप है वो एक्सियल पोजीशन पे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे CH3 ग्रुप लिया है एट द एक्सियल पोजीशन, ओके। तो यहाँ पे जो 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन होता है, दिस इज द 1,3 डायएक्सियल मतलब जो प्रोटॉन्स है एट द, दिस इज थर्ड कार्बन फ्रॉम द CH3, ओके। दिस इज 1, 2 and 3. This is also 1, 2 and 3. Okay. So 2 proton at the 1,3 in relation with the CH3. So due to that 1,3 diaxial interaction, ये प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन्स एंड ये प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन्स इस CH3 के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे तो उन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। एंड जिस रिपल्शन की वजह से वो CH3 एट द एक्सियल पोजिशन बहुत अनस्टेबल हो जाएगा ड्यू टू दैट 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन। दिस कॉज स्टेरिक और वैन डर वाल्स स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल, और इसकी वजह से अपने मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगा, स्टेरिक और वैन डर वाल स्ट्रेन। एंड स्ट्रेन आने की वजह से अपना जो मॉलिक्यूल है वो है बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। जबकि अदर केस, इन द अदर केस, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, इन दी अदर केस जब हम CH3 ग्रुप और एनी एटम और सब्सटीट्यूटेड मोनो सब्सटीट्यूटेड जो ग्रुप है वो कहाँ पे लेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे लेंगे। तो मोनो सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन विल अज्यूम द चेयर कन्फॉर्मेशन इन विच सब्सटीट्यूट ऑक्युपाइज इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे लेंगे। तो इनमें जो 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन होता था, जो स्टेरिक स्ट्रेन पॉसिबल हो रहा था इसमें एक्सियल मिथाइल में, वो इक्वेटोरियल मिथाइल में नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जो इक्वेटोरियल मिथाइल है उसमें स्ट्रेन कम होगा एज कंपेयर टू एक्सियल मिथाइल, एंड दैट्स व्हाई अवर मोनो सब्सटीट्यूटेड जो ग्रुप है वो इक्वेटोरियल मिथाइल में ज़्यादा प्रिफर्ड करेगा, ठीक है। ये जो मिथाइल है एट द इक्वेटोरियल पोजीशन में ज़्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू एक्सियल पोजीशन, ठीक है। सो इन दोनों में सबसे ज़्यादा कन्फॉर्मेशनली स्टेबल कौन सा कन्फॉर्मेशन होगा, दिस इज मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन। इक्वेटोरियल इज अ मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन दैन एक्सियल फॉर मोनो सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, स्पेसिफिकली मोनो सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। तो ऐसे मोनो सब्सटीट्यूशंस जितने भी चेंज करेंगे हम लोग, उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है एक्सियल, कभी एक्सियल पे स्टेबल होगा, कभी इक्वेटोरियल पे स्टेबल होगा। डिफरेंट जो सब्सटीट्यूशंस है उसमें डिफरेंट स्टेबिलिटी ऑर्डर होंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन द मोनो सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, इक्वेटोरियल इज मोर स्टेबल दैन एक्सियल। और इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस कितनी होंगी, ये जो एक्सियल पोजीशन वाला है, एक्सियल पोजीशन वाला ये 1.8 किलो कैलोरी 1.8 किलो कैलोरी ज़्यादा होगा किससे, इक्वेटोरियल से, ठीक है। ये दिस हैविंग मोर एनर्जी ऑफ 1.8 किलो कैलोरी पर मोल किससे,
एक्सियल से। सो एक्सियल जो है वो जो इक्वेटोरियल जो है वो एक्सियल से 1.8 किलो कैलोरी कम एनर्जी होगी, इसलिए इक्वेटोरियल जो कन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू एक्सियल। So if I take 100% molecule of a cyclohexane, monosubstituted cyclohexane, the 95% exist in equatorial conformation. Okay, 95% जो molecule होंगे वो equatorial position में exist करेंगे, equatorial conformation में exist करेंगे. In conclusion, in monosubstituted cyclohexane, chair conformation is more stable than boat conformation, and out of this two chair conformation, the conformation with equatorial substituent is more stable than that of axial substituent. So that is the monosubstituted cyclohexane. Now the next is conformation of disubstituted cyclohexane. When two substituent present on the cyclohexane ring, one has to consider whether they are a cis or a trans to each other. Okay, these are the relation between 1 and 2 or any two substituent present on the cyclohexane. So पहला relation क्या होगा, either वो cis होगा और वो trans होगा to each other, and whether they are 1-2 in position or 1-3 in position or 1-4 in position. जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये मॉलिक्यूल जो हमने लिया है इसमें रिलेशन क्या है 1-2, और ये भी अपसाइड है, ठीक है, अपसाइड है और ये भी अपसाइड है, इसलिए इन दोनों में सिस ट्रांस वाला रिलेशन अगर देखेंगे तो ये क्या है, दोनों सिस है, एक दूसरे को सिस है, एक दूसरे के साथ सिस है, ठीक है, और इसका पोजीशन रिलेशन देखेंगे तो 1-2 पोजीशन है, ठीक है। तो इसी में पोजीशन सेम है 1-2 पोजीशन, बट जो ओरिएंटेशन है इसका अपराइट है एंड इसका डाउनवर्ड है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज ट्रांस इन रिलेशन, ठीक है। 1-2 पोजीशन जो सब्सटीट्यूटेड की है वो कैसे ट्रांस इन रिलेशन विद ईच अदर, एंड इन दिस इज डाउनवर्ड एंड दिस इज अपवर्ड, सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रांस इन रिलेशन, सेम पोजीशन 1-2 बट ट्रांस इन रिलेशन। सो दिस इन, अगर हम मोनोसब्स्टिट्यूटेड में देखेंगे तो एक ही सब्सटीट्यूशन रहता जिसके दो ही कन्फर्मेशन हो सकते थे, कौन सा, एक एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, बट हम जब डाई सब्सटीट्यूटेड डिस्कस करते हैं उनमें दो रिलेशंस आते हैं। यहाँ पे हमें देखना होता है कि जो कन्फर्मेशनल आइसोमर है, एक तो सिस और ट्रांस इन रिलेशन में है, और उसमें 1-2, 1-3, 1-4, मतलब पोजीशन में जो रिलेशन है 1-2, 1-3 और 1-4 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है 1-2, और उसमें ही 1-3 अगर देखेंगे तो 1-3 कौन सा होगा, दिस इज 1 एंड थर्ड, इससे थर्ड कार्बन पे, दिस इज थर्ड कार्बन, सो दिस इज 1-3 रिलेशन एंड दोनों अपसाइड है, सो दोनों सिस में होंगे। और इसका ही ट्रांस देखेंगे, 1-3 का ट्रांस कैसा होगा, ये अपसाइड में होगा और ये वो थर्ड पोजीशन पे जो होगा वो डाउन साइड में होगा, सो दिस इज ट्रांस ऑफ अ 1-3। एंड अगर 1-4 डाई सब्सटीट्यूटेड देखेंगे तो वो कैसे होगा, 1-4 डाई सब्सटीट्यूटेड, सेम साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मेशन, चेयर कन्फर्मेशन, इसमें अगर 1-4 रिलेशन लेंगे, ठीक है, 1, दिस इज 1, 2 एंड 3, 4, 1-4, दिस इज 1-4 रिलेशन, 2 substitution over 1 and 4 position of a cyclohexane, and ये अपसाइड है, ये अपसाइड है, सो बोथ जो सब्सटीट्यूशन है 1-4 पे वो सेम साइड है, वो अप, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, सिस, ठीक है। एंड इसी का अगर ट्रांस कन्फर्मेशन देखें 1-4 पे तो एक सब्सटीट्यूशन अपसाइड होगा और दूसरा कहाँ होगा, डाउन साइड होगा, दिस इज ऑल्सो अ क्या होगा, ट्रांस कन्फर्मेशन, ठीक है, ट्रांस कन्फर्मेशन, बिकॉज देयर सब्सटीट्यूशन पोजीशन आर एट द डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट साइड। सो दिस इज द काइंड ऑफ 1-2, 1-3 and 1-4 with respect to each other. In general, disubstituted cyclohexane
the conformation containing both the substituent in equatorial position will be preferred. Okay, or when this is not possible, the conformation with the bulkier substituent in equatorial position will be preferred conformation. Let us take some specific example. तो ये बोल रहे हैं कि जो हम डाई सब्सटीट्यूटेड केसेस डिस्कस करते हैं कन्फर्मेशन में, यहाँ पे जो सब्सटीट्यूएंट है वो एक्सियल में ज़्यादा प्रिफर नहीं करते एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल. सो जनरली डाई सब्सटीट्यूटेड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ज़्यादा प्रिफर करते हैं, जो कि ये इस एग्जांपल में ये देखे हैं. बोथ दी मॉलिक्यूल बोथ दी एटम्स और ग्रुप और एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे जनरली. ठीक है, बट देर आर सम मॉलिक्यूल्स और सब्सटीट्यूएंट दे आर प्रिफर्ड टू एक्सियल पोजीशन ऑल्सो विल बी एग्जिस्ट हियर, बट डिपेंड करता है वो सब्सटीट्यूट कौन सा है. ठीक है, यहाँ पे जो CH3 सब्सटीट्यूएंट दिखाया गया है, एग्जाम्पल लिया है हमने CH3 सब्सटीट्यूएंट, ये साइज़ में बहुत बड़ा होता है. ठीक है, और इसकी साइज़ बड़ी होने की वजह से वो मैक्सिमम इक्वेटोरियल पोजीशन प्रेफर करेगा. ठीक है, एज कम्पेयर टू एक्सियल पोजीशन, क्योंकि एक्सियल पोजीशन में क्या होता है 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन होता है. ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स होते हैं इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्ट करने की वजह से वो जो स्टेरिक स्ट्रेन है वो ज़्यादा होगी इसमें. ठीक है, एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल पोजीशन. सो इक्वेटोरियल पोजीशन में जब होता है वो 1,3 डायएक्सियल जो इंटरेक्शन होती है स्टेरिक स्ट्रेन वो कम होती है एज कम्पेयर टू एक्सियल. That's why generally they prefer to exist in equatorial position as compared to axial position. So in disubstituted सबसे पहला केस हम डिस्कस करेंगे 1,2 डायएक्सियल 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन. ओके, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन. दिस इज फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकेंड पोजीशन. ठीक है, 1,2 ही डिस्कस करेंगे और 1,2 में हम 2 मिथाइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे रख सकते हैं और उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है और उस पॉसिबिलिटीज़ की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या होगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, जो हम 1,2 पोजीशन लेते हैं. ठीक है, तो उस CH3 को हम आइदर एक्सियल रख लें और दूसरे CH3 को इक्वेटोरियल रख रहे हैं. ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जो पहला CH3 है वो एक्सियल होगा एंड दूसरा CH3 जो है वो क्या होगा एक्सियल होगा. ठीक है, एक्सियल. एंड थर्ड जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, पहला CH3 वो इक्वेटोरियल होगा और दूसरा भी इक्वेटोरियल होगा. ठीक है, तो इनमें सिस ट्रांस रिलेशन कैसे देखेंगे हम लोग, सिस कैसे देखेंगे, ये दिस इज अपसाइड, दिस इज ऑल्सो अपसाइड, दिस इज सिस. ये जो मॉलिक्यूल है वो सिस है, ये ट्रांस है बिकॉज ऑफ अपोजिट पोजीशन, दिस इज ऑल्सो ट्रांस बिकॉज ऑफ अपोजिट पोजीशन. तो इन तीनों के बीच में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा वो हम देखेंगे अभी. तो जब हम देखते हैं कि इस CH3 मॉलिक्यूल को एक्सियल पोजीशन पे रखेंगे एंड इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे, तो इसमें ये जो CH3 है वो 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन कर रहा है. ठीक है, 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन कर रहा है, जबकि ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे होने की वजह से यहाँ पे 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन नहीं है. ठीक है, यहाँ पे एक ही 1,3 डायएक्सियल है इंटरेक्शन है. बट इफ़ आई सब्सटीट्यूट द CH3 बोथ द एट एक्सियल पोजीशन, तो दोनों साइड से 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ये पहले मॉलिक्यूल की कंपैरिजन में ये जो मॉलिक्यूल है सेकेंड मॉलिक्यूल इज लेस स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट जो हमने देखा है स्ट्रक्चर उसमें एक ही 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन था और सेकेंड में 2 डायएक्सियल 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन है. इसकी वजह से फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन सेकेंड. अगर तीसरा केस अगर डिस्कस करें हम लोग, तीसरा केस में क्या है, थर्ड केस में दोनों CH3 ग्रुप्स जो है वो दिस इज एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, दोनों CH3 एट द इक्वेटोरियल पोजीशन में होने की वजह से वहाँ पे जो 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन है यहाँ पे एक भी 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन नहीं है.
ठीक है, इसकी वजह से दिस इज मोर स्टेबल देन द एक्सियल एक्सियल एंड एक्सियल इक्वेटोरियल। ठीक है, अगर इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हम कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल मोर स्टेबल देन एक्सियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल एक्सियल, दोनों सेम है। ठीक है, उसके बाद सबसे लेस स्टेबल कौन होगा? एक्सियल एक्सियल। ठीक है, क्योंकि एक्सियल एक्सियल में दो 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन है, एक्सियल इक्वेटोरियल में एक 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन है और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में एक भी 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन नहीं है। इसकी वजह से एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल मोर स्टेबल देन एक्सियल इक्वेटोरियल and this is more stable than axial interaction. Okay, so the trans configuration on this exists in two different conformation, 1a 2a 1e 2e, मतलब 1 axial 2 axial 1 equatorial 1 2 equatorial in cis 1,2 dimethyl cyclohexane there is a 1 axial methyl group which causes 2 1,3 diaxial methyl सेम। ठीक है, ये देखे हैं। So now next is 1,3 डाइसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन मिथाइल ग्रुप ही लिया है। तो इसमें हमें 3 फॉर्म्स मिलते हैं जो कि सब्स्टिट्यूशंस एट एक्सियल एक्सियल, ठीक है, एक्सियल एक्सियल और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, एंड दिस इज एक्सियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल एक्सियल। ठीक है, इक्वेटोरियल एक्सियल और एक्सियल इक्वेटोरियल। तो इन तीनों में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और क्यों होगा वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट एक्सियल एक्सियल। एक्सियल एक्सियल आपको दिख ही रहा होगा, ये एक्सियल एक्सियल पोजीशन पे होने की वजह से 1,3 डायक्सियल, दो बड़े ग्रुप एट द एक्सियल पोजीशन विल नॉट स्टेबल। ओके, ये यहाँ पे क्या करेंगे? स्टेरिक हिंड्रेंस होगा और यहाँ पे जो इंटर रिपल्शन होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड जिसकी वजह से ये जो कन्फॉर्मेशन है वो मोस्ट अनस्टेबल कन्फॉर्मेशन होगा, मोस्ट अनस्टेबल कन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो CH3 ग्रुप एट द एक्सियल पोजीशन विल इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड ड्यू टू दैट इंटरेक्शन देयर इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज मोर। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। ठीक है, बोथ द बिगर ग्रुप CH3 ग्रुप एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, एंड जो इक्वेटोरियल पोजीशन में होने की वजह से दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, और इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है सबसे कम होगा। ठीक है, सबसे कम होगा, एंड इसकी वजह से अपना जो ये मॉलिक्यूल है 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन वो मोस्ट प्रिफर कौन से कन्फॉर्मेशन में करेगा? इन दिस कन्फॉर्मेशन, बिकॉज इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल मॉलिक्यूल और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पोजीशन इज नॉट इंटरेक्टिंग मच मोर। ठीक है, उसमें 1,3 डायक्सियल जो इंटरेक्शन है सबसे कम है, इसलिए वो मोस्ट स्टेबल कहलाएगा। ठीक है, एंड लास्ट मॉलिक्यूल इज अ लास्ट कन्फॉर्मेशन इज अ एक्सियल इक्वेटोरियल कन्फॉर्मेशन। ठीक है, एक CH3 एट द एक्सियल पोजीशन एंड दूसरा CH3 एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, सो इसमें ये CH3 इस CH3 के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, बट एक CH3 एट द इक्वेटोरियल पोजीशन में होने की वजह से ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन्स होंगे, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन्स होंगे वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, जिससे हम क्या कहते हैं? 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन, जिसकी वजह से ये क्वाइट अनस्टेबल देन दिस इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल की कंपैरिजन में ये जो होगा वो अनस्टेबल होगा, बट एक्सियल एक्सियल की कंपैरिजन में ये जो एक्सियल इक्वेटोरियल है वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसका अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर हम देखें तो क्या होगा? तो ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल मोस्ट स्टेबल देन एक्सियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल एक्सियल,
इज मोर स्टेबल देन एक्सियल एक्सियल, ठीक है। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। मतलब ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हम क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि हम जब एक मतलब इसका मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है, 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन जब लेंगे, इसके 100% अगर मॉलिक्यूल लेंगे तो इसमें 99% जो मॉलिक्यूल होंगे कौन से कन्फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करेंगे, इक्विटोरियल में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़े थोड़े जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्सियल में होंगे, एक्सियल इक्विटोरियल में होंगे और एक्सियल में होंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशंस इक्विटोरियल की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होंगी एज कम्पेयर टू एक्सियल इक्वेटोरियल और एक्सियल, ठीक है। बट ये स्पेसिफिकली फॉर मिथाइल ग्रुप के लिए था। अगर यहाँ पे हम दूसरे ग्रुप सब्सटीट्यूट करेंगे, फॉर एग्जांपल OH, ठीक है, OH जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या होता है, उनमें दूसरे जो इंटरेक्शंस है, ये तो हमने देखा सिर्फ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन देखा, इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्शन आएगा किसकी वजह से, दो बिगर साइज ग्रुप आर एट द एक्सियल पोजीशन की वजह से। इक्वेटोरियल में क्या होगा, जो इंटरेक्शन होगा इनमें, इसकी वजह से वो अनस्टेबल होंगे। बट इन केस ऑफ, अगर इग्नोर करो इस CH3 ग्रुप को, इग्नोर करो, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग OH ग्रुप लेंगे, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो यहाँ पे हम लोग जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, वो जो पैरामीटर है वो यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ साइन ऑफ स्टेबिलिटी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है, ठीक है। इसकी वजह से इन केस ऑफ OH, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप एट द एक्सियल पोजीशन, एक्सियल इज मोर स्टेबल, ठीक है, एक्सियल इज मोर स्टेबल देन इक्विटोरियल एंड देन एक्सियल इक्विटोरियल सबसे लेस स्टेबल हो जाएगा इन दिस केस, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है कौन सा मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 ग्रुप जो है, इन ये केस में इक्विटोरियल मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, देन एक्सियल इक्विटोरियल, देन एक्सियल। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर दिस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, सिंपल। एंड द नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज 1,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे हमने 1,4 पोजीशन डिस्कस की है, ठीक है। 1,4 पोजीशन में 3 केसेस आते हैं, ठीक है। कौन से 3 केसेस? फर्स्ट वन इज दिस इज एट द इक्विटोरियल एंड दिस इज एट द एक्सियल, this is at the axial, this is also at the axial, this is equatorial and this is also equatorial. So in these 3 cases we will अपन जो अपने थेरीज है वो अप्लाई करके देखेंगे कि कौन सा स्टेबल है या कौन सा अनस्टेबल है। तो जो पहला मॉलिक्यूल है जहाँ पे इक्वेटोरियल एक्सियल पे है, तो यहाँ पे सेम चीज़ होगी, ठीक है। ये CH3 एक्सियल होने की वजह से 1,3-डाइएक्सियल इंट्रैक्शन होगा इनमें, ठीक है, 1,3-डाइएक्सियल इंट्रैक्शन होगा इन 2 हाइड्रोजन्स के साथ, सो इट इज़ क्वाइट अनस्टेबल, ठीक है। और ये CH3 एट द इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, इसकी वजह से उसका कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, इस पर कोई भी स्ट्रेन और कुछ भी ये नहीं होगा, ठीक है। तो एंड सेकेंड एट द एक्सियल, ठीक है, एक्सियल जो होगा वो इस वाले हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये CH3 इस वाले हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करेगा, एंड ये CH3 इस वाले हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करेगा, एंड इट गिव्स रिपल्शन मोर एज कंपेयर टू फर्स्ट वन, ठीक है। ये इसकी कंपैरिजन में इसका जो रिपल्शन होगा सबसे ज़्यादा होगा, एंड रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो एंड थर्ड केस क्या है? थर्ड केस इज जो CH3 मॉलिक्यूल है एट द इक्वेटोरियल पोजीशन है, ठीक है, 1 and 4
पोजीशन पे जो CH3 मॉलिक्यूल है एट दी इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, जिसकी वजह से इन दोनों में जो 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन है दोनों केसेस में 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। एंड इसकी वजह से जो इक्वेटोरियल है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल more stable as compared to axial equatorial as compared to axial। यहाँ पे axial मोस्ट अनस्टेबल है, इक्वेटोरियल मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। सो दैट इज द कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस फॉर डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। और इसका जो 1,4,3 ट्राई सब्सटीट्यूटेड जो है मॉलिक्यूल वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।